So I warmly welcome him to the dais. We welcome you, sir. So he is the founder and the chairman of Hula Group of Institutions and Shifa Hospitals, and he is also the president of MFERD, the Millet Foundation. So we are honored to have his presence. So, mashallah, let's welcome him again with a big round of applause. Okay, all of you please be seated. I also welcome Iftikhar sir, the principal of Ali College, to the dais, and also MIA chairman Javed Saab to the dais, and our coordinator Nisar sir. Welcome everyone for this special program. So I appreciate the presence of you all on this Sunday, and I'm sure at the end of the day you will feel it is worth, because the personality who is with us is the most hardworking, the busy bee in the service of the community and nation. So Maulana Dr. Mustaq Ahmad sir. So we are keen for to listen from him. So first of all, as we always start our programs for the Qiraat, let me invite Sadullah Khan, Hafiz Sadullah Khan, please come over the stage to start with the Qiraat. Ameen. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फज्र إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MashaAllah, that was very melodious Qiraat. May Allah make him embedded with more and more ilm and knowledge. So let me also invite Mr. Abu Bakr Siddiq to sing a Naat. He will recite Naat to honor this program. So Abu Bakr Siddiq, he is a student of our madrasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। ओ सोने से कंकर और चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। ओ चेहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से चांद कहता है हरदम, सितारों से चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं टुकड़ों का आलम, तुम्हें क्या बताऊं टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, जिहाद मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने दुल्हन से अपने इजाज़त अगर दो तो जाने शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। ओ नन्नास असग़र ओ एड़ी लगल कर, ओ नन्नास असग़र ओ एड़ी लगल कर, यही कह रहा है वो ख़ैमे में रोकर, यही कह रहा है वो ख़ैमे में रोकर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो देखा है रूहे जमाले रिसालत, जो देखा है रूहे जमाले रिसालत, तो ताहिर उमर मुस्तफ़ा बोले, तो ताहिर उमर मुस्तफ़ा से बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी, मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है। बड़ी दुश्मनी आपसे थी, मगर अब
गुलामी में आने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। और सोने से कंकर और चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Walaikum salam, mashallah, jazakallahu khairan. That was very beautiful and melodious naat, so to enlighten this program. And it is my privilege to introduce today's guest speaker and today's the special personality what we have in front of us. I have no words to describe about him. So what a personality, this kind of diamond or the pearl, maybe only one or two in the centuries. So what to say about him? He is actually a doctor, medical doctor. You think about if someone has a doctor degree from UK, so the person would just think about having luxury life, correct? If I were MBBS and MS from UK, say he could have had very lavish life. So he is an ophthalmological surgeon, the one who enlightens, when he gives eyesight to those who has the problem in eyes, like the cataract surgery and all you might have heard. So after having such a qualification of the international standards, again he has not stopped there. He came into the area of social service. He has established Shifa Hospital. It is not just an ordinary hospital, it is like a multi-speciality or super speciality hospital, what we say in Shivaji Nagar in Fields Road. What we have, he has started his social service from there. He did not stop there. That was into the sector of health. Okay, he himself as a doctor, he did not stop there. He also pursued his education into, he has pursued his alim degree. So not just being the doctor, he also became alim. I am also confused whether to say Maulana doctor or Dr. Maulana. Likewise, he has his qualification, and he just did not stop there. He also continued to the segment of education, MFERD. Who does not know about Millet Foundation? All over India, which provide the backbone or the structure or the network for the education. They follow with this 3E. 3E for etiquette, education and excellence. So they provide the tarbiyat or the training, not just the knowledge. They also provide the complete syllabus. They also provide the excellence. And he also did not stop there. He went even further to the MFHRD, MFEHRD, that is for Millet Foundation for the health excellence. They have the network of all the hospitals. Now this hospitality or this profession of doctors, it has also become like a commercial one. So he has pitched in there to ensure that we should also clean that sector. We should be purely into the service for the sake of millet, for the sake of Allah, for the sake of Islam. And he did not stop there. Again, he started about sports. See, one more most important aspect, our Sadar Sahab also keeps saying the importance of health and sports. So Millet Foundation pitched into the sports also. Still he did not stop there. He even continued for economy, MFEERD, Millet Foundation for Economy. It brings everyone, all the network of the professionals and the industrialists, mashallah. So what else is remaining? He has covered health, he has covered education, he has covered economy, he has covered sports, everything. And what is most important about him is he walks the talk. He walks the talk. He doesn't just preach, he practices what he preaches. So there are many people nowadays. Social service means it is forwarding in WhatsApp, right? Social service का मतलब अब हो गया कि just you put it in the status, we keep forwarding the message, help this, do that. He is not like that. He is the one actively involved. He has proved what he is saying. He walks what he talks. So, mashallah. So, I am sure, 100% sure that what we have come here on Sunday to listen from him, it is really worth
what the service what he has done through MFERD and Shifa hospitals, and he is also the chairman of Huda group of institutions. Huda has it named. Definitely it has been providing hidayat to thousands and thousands of students, and even to the professionals and to the doctors and to everyone. So we are glad to have his presence. So as you are all excited to listen from him, definitely yes, I am also excited. So before that, I request our Mufti Sahab to give a little more brief about our group of institutions and how we can have the tie-up and how we can work each other closely with MFERD and other segments what he is heading. So I request Mufti Sahab, please brief us about our institutions and our services. Over to Mufti Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid wal Furqanil Hamid. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة और कमा قال عليه الصلاة والسلام। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला मालिक है। दरूद व सलाम का नजराना हो सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े से अल्लाह ने हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है। सदर मुहतरम, असातिज़ा इकराम और अजीज तलबा, हमारे लिए आज बड़ी ही मसरत और खुशी का दिन है कि आज हमारे दरमियान में हमारे रहनुमा और हमारे सरपरस्त हज़रत मौलाना डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब दामत बरकातुहू हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं। हम हज़रत का दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोगों की मेहनतें अलग अलग होती हैं। कोई अल्लाह के रास्ते में जाकर दीन की खिदमत में लगा हुआ है, कोई दर्स तदरीस में लगा हुआ है, कोई लोगों की खिदमत में लगा हुआ है, कोई मिल्लत की खिदमत में लगा हुआ है, कोई इस्लामिक स्कूल खोलकर कौम मिल्लत के नौजवानों को और बच्चों को संवार रहा है। बस सबका मकसद ये है कि अल्लाह हमारे अमल से राज़ी हो जाए और अल्लाह हमारे से दीन का काम ले ले और दीन का काम इस्तिकामत के साथ, इखलास के साथ ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इदारा जो जामिया सईदना अनस इब्न मालिक जो मदरसा है, तकरीबन 2002 में डॉक्टर साहब को भी पता है और इसके पीछे डॉक्टर साहब की भी मेहनतें हुई हैं और डॉक्टर साहब की कोशिशें भी हुई हैं। जब मदरसा चल रहा था तो जब स्कूल खोलने का हम लोगों ने इरादा किया था तो डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ लाए थे स्कूल की प्रमोशन के लिए, स्कूल की तरक्की के लिए और स्कूल में किस तरीके से आगे लेकर जाना है उसके लिए डॉक्टर साहब की दुआएं भी थी, मेहनतें भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से आज अल्लाह के फजल से इदारे में मदरसे के अंदर 120 तलबा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़्यादा तलबा कुरान को हिफ्ज़ कर लिए हैं और कई बच्चे हाफिज़ कुरान बनने के बाद अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से बड़े बड़े मसाजिद में उलमा बनकर और मुफ्तियान बनकर इदारों को चला रहे हैं, इदारों को संभाल रहे हैं और कौम व मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने फिक्र की कि मदरसे में आने वाले तलबा की जो फीसद है और जो उनकी जो तादाद है वो बिल्कुल कम हो जाती है। इस वजह से हमने चाहा क्यों ना कि ऐसे इस्लामिक स्कूल को कायम किया जाए कि उस स्कूल के ज़रिए से हमारे बच्चों के ईमान की सलामती हो जाए, उनके अकायद महफूज हो जाए और वो शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अल्लाह को राज़ी करने के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने वाले हो जाएं और ऐसे लोग तैयार हों
जिनके दिलों के अंदर कौम की और मिल्लत की फिक्र हो और खिदमत की नीयत हो। जिस तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए और सहाबा ने अपनी सलाहियतों को, अपने जान को, माल को, वक्त को लगाया, ऐसे ही हमारे बच्चे हमारे स्कूल में आने के बाद हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने, हमारे बच्चे APS भी बने, हमारे बच्चे लायर्स भी बने और हमारे बच्चे सही माने में सच्चे पक्के ईमान वाले बने, दीनदार बने, उनके अकायद महफूज हो जाए और उनकी नमाज सही हो जाए और उनका कुरान तजवीद और तरतीब के साथ और वो पढ़ने वाले बन जाएं। जिस तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी कह दीजिए कि अहले इल्म और नाजानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों की फजीलत अलग है। अल्लाह ने इल्म वालों के लिए फजीलत बतलाई है। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर फर्ज है। जिस तरीके से दुनिया का इल्म हासिल करना जरूरी है, इसी तरीके से आखिरत का इल्म भी हासिल करना जरूरी है। हमारा इंस्टीट्यूट और जो हमारा इदारा है, ये एक टारगेट को सामने रखकर, एक विजन को सामने रखकर बनाया गया है। तालीम तो हमारा बहाना है, ईमान हमारा निशाना है। जिस तरीके से हमारे सामने डॉक्टर साहब जो तशरीफ लाए हैं, ये एतबार से हजरत आलिम दीन हैं, रशादी हैं, एक एतबार से हजरत डॉक्टर भी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं, आंखों के स्पेशलिस्ट हैं और कौम की मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। दिन रात कौम मिल्लत की फिक्र लेकर हजरत पूरे हिंदुस्तान में घूमते फिरते रहते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको और पूरे जो जितने भी टीचर्स आए हैं सबको जज़ा खैर अता फरमाए और सही माने में हमें दीन पर इस्तिकामत के साथ, इखलास और लिल्लाहियत के साथ और एक विजन को सामने रखते हुए अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को संवारने की नीयत से अगर काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएंगे। अब मैं ज़्यादा हजरत के दरमियान में हाई नहीं होना चाहता, बस इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन मुफ्ती साहब, ये मुख्तसरन तारुफ के लिए। So without wasting much time, I would like to request Dr. Mushtaq, Maulana Dr. Mushtaq Ahmad Sahab to present his opinion, and I also request all those who are present here, we will not just listen, we will also make note and we will surely implement on it. We will follow Dr. Saab's words like the walk the talk. We have to work on whatever he advises. So he enlightens us with all the jibal words. So I request Dr. Saab to please to start with the guidance to us. Jazakallah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। उनके बच्चे भी साथ हैं माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह पूरे बात में 3 कहानियाँ होता है इंशाअल्लाह। वो कहानियाँ से क्या हासिल होता है इंशाअल्लाह देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली कहानी, ठीक है, एक आदमी घर के सामने बैठा हुआ था, उसके सामने एक भाई जो है नई कार थी, बहुत अच्छी कार थी। तो भाई जो है पड़ोस का एक शख्स, चलो अब्दुल्ला समझेंगे, वहाँ से आते आते देखा भाई जो है क्या है, कार खड़ी है, नई कार। अब जिसके घर के सामने कार खड़ी थी वो भी खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई है? तुम्हारी कार? कैसी अच्छी है ना कार, तुम्हारी कार है नहीं? तो भाई जो है कार को देखा, इधर देखा उधर देखा, इतनी अच्छी है ना, टॉप क्लास है, पर वो जो है चला गया। भाई जो है जी दूसरा शख्स फिर उसके बाद चंद वक्त के बाद गुजरे। आप ये भाई जो है तुम्हारी कार कौन दिला? इसको भैया दिलाए, बड़े भैया दिलाए। अच्छा, तो उन्हें ज़्यादा बोलिया, काश मेरा भी कोई ऐसा बड़ा भाई होता जो मुझे वैसी कार दिलाता। दूसरा शख्स क्या बोला? काश मेरा भी कोई बड़ा भाई ऐसा होता जो मुझे कार दिलाता। तो उन्हें चलेगा। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद और एक शख्स आया, देखा कार को, बहुत सी है ना कार, कब लिए? अच्छा, भाई जो है कौन दिलाए तुमने? मेरा बड़ा भाई दिलाया। अच्छा, तो अब इन्हें क्या बोला? सुनो, इन्हें क्या बोला? काश मैं ऐसा बड़ा भाई होता जो मेरे छोटे भाई को कार दिलाता। आपको सा भाई पसंद? तुमना कौन सा भाई पसंद है? तीसरा भाई ना?
एक है कार देख ले को मेरी कार बोलने वाला, या जो है कम अज़ कम अपने बड़े भाई का एहसान याद रखने वाला, या मैं बड़ा भाई बनकर जो है छोटे भाई को कार दिलाने वाला, कौन होना? तीसरा। तो अगर भाई जो आज दूसरे की स्कूल देखो, कॉलेज को देखो, अच्छी है बोला को हमें क्या करें आजकल मुसलमान का काम क्या करते हो, गैर की स्कूल आपको कॉलेज आपको उनके हॉस्पिटल की खड़ को तारीफ करना कहा होना क्योंकि नो कैसे चलानी, देखो मुसलमानों को चलाने आता, देखो कैसा बंदिशों की इन्हें कम अज़ कम वो कार की तारीफ करे उसकी। लेकिन हमें उल्टे आदमी क्या सब जो है क्या करते हैं, दूसरों के हॉस्पिटल की तारीफ, दूसरे के स्कूलों की तारीफ, दूसरों के कारों की, कब देखो जो है इंग्लैंड की तारीफ, अमेरिका की तारीफ करते हैं। दूसरे लोग अभी जो है क्या करते हैं, जब कोई चीज़ देखते हैं भाई तुमने कैसा हासिल हुआ, अच्छा तो भी सोचते हैं कि भाई जो है ऐसा उन्होंने दिला सो कम अज़ कम उनकी अजमत, तो भाई जो है जी कम अज़ कम सोचते हैं कि हमना भी क्या तो वैसा मिल जाता, ऐसी स्कूल मिल जाती, हमें पढ़ लेते, हमें भी कुछ कर लेते, हमें भी कुछ साथ दे देते, हमें भी हॉस्पिटल बन डालते, हमें भी क्या तो कॉलेज बना देते जी। तीसरे वो लोग होते हैं कि भाई जो है कॉलेज बनाते नहीं, कॉलेज बनाने वाले को बनाते, स्कूल को बनाने वाले को बनाना, हमें खाली कॉलेज में पढ़ाने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, खाली डॉक्टर नहीं बनना, हॉस्पिटल्स बनाने वाले बनाना, डॉक्टरों को बनाने वाले बनाना, मैं इंजीनियर्स को बनाने वाले बनाना। हम दुनिया में क्या थे भाई, सिर्फ एक डॉक्टर को नहीं टीम बनाने वाले थे हम लोग। आजकल क्या होगा, दूसरों की चीज़ों को देखो, खाली कम अज़ कम देखो रान टपका ले देख ले, ऐसी है देखो खाली तारीफ कर रहे बैठे रहते हैं, नहीं दूसरों की चीज़ों की तारीफ कर करते, हाँ देख ले खड़े रहते हैं, सच क्या किया भूल को क्या कि मिल गया सर का जी। अब अक्सर लोग फिल्मों में जाती हैं, बहुत सारे मैं देखती हूँ, वो हीरोइन को देखती हूँ, हीरो को देखती हूँ, क्या ऐसा खाली जो रान टपकता रहता है नहीं। तो अगर भाई जो है हमें भी रान टपकाने बहुत सारे हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स, हमारे मैनेजमेंट्स वो हैं कि भाई जो है फर्स्ट ग्रो में कम अज़ कम जो है सेकेंड लेवल में आना। सेकेंड लेवल में क्या, जो हम ना साथ देखो जो है दिला को ही कम अज़ कम उनके लिए जो है अगर चले गए तो दुआ करना, नहीं चले गए तो इज्जत तो करना। बहुत सारे जो है मुसलमान क्या करते हैं भाई, जो छोटे छोटे मुसलमान इदारों का खानदा इस्तेमाल करो, ऊपर चढ़ती हैं, ऊपर चढ़ कर लात मारना, जर्रा जो है पढ़ाना सीख लिया तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो तो हम जाती हैं, जर्रा एक ले तो हम जाती हैं, पूरा खाली रोना मरते रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, अक्सर जो है जो कमज़ोर प्रोजेक्ट है टीचर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स जो है यहाँ बनते हैं, मुसलमान इदारों में बनते हैं, इन्होंने ऐसा ही कर ले को, कहाँ की मेहनत कर को, फीस आती की नहीं की, इधर से उधर से एडजस्ट कर को महीने सैलरी देती हैं, प्लस ये हम जैसी को वहाँ सीखे वहाँ जब सीखेगा तो दर्रा इनको बोलना आगा तो बाजू की स्कूल वाले क्या करते हैं, दर्रा जो हमें 2000 दे देंगे तो वहाँ ऐसा बेंगलुरु में होता है, मालूम है कि ऊपर में क्या था मालूम है मुझे, ये हाईजैक हो जाते हैं टीचर्स। तो कम अज़ कम दूसरे दर्जे क्या बनना है हमें, जो हमारे ऊपर एहसान कर को नहीं, जो हम ना कोई पूछ को नहीं देखते थे उस वक्त जो है हमको पूछ को देखे, तो जो है लॉयल होना। सेकेंड कम अज़ कम अपने बड़े भाई को याद रखना। भाई उससे आगे का स्टेप क्या, हमें ऐसे बनना कि भाई जिस तरह हमने को उनकी प्लेटफॉर्म दिए। 3 साल पहले मैं आए थे, क्या भी नहीं था, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, एक बड़ा पंडाल डाले थे, परसों ऐसा का तीसरा वो भी आया था, उन्हें भी आकर क्या बात किया, हमें भी क्या की बात करना ज़रा आता था, खाली बात करना सीख नहीं सकता, जो क्या क्या बोला ले मैं बस सही समझू ना कहूँ, ठीक है अंग्रेजी में बोले समझ में नहीं रहेगा, ठीक है अच्छा। तो भी जो है ये करते वो करते क्या क्या करना होगा लिख लेना पड़ेगा, आपको लिख लो तो इंशाल्लाह उसे ढंग से करता हूँ। तो लेकिन क्या हुआ भाई माशाल्लाह, अब ये बन गया, वो बन गया, सब बन गए, तो ऐसा ही बन गए है नहीं। कोई शायर बोलता, जब लहू रोए हैं तो आया है बहारों में सलाम, इन हक़ाइक़ को ख्वाबों से संवारा ना गया। कोई हकीकत है नहीं, कोई चीज़ जो है आँखें बंद करो हो जा तो हो जाती नहीं, एक तो हमें खुदा ने हुए और दूसरा कम अज़ कम जरा मंत्र पड़े तो क्या तो ये कबूतर बड़ा बड़ा आ सकते हैं, क्या तो बाल बना सकते हैं, क्या तो भी एक जादू करें, तो वो भी नहीं है हमारे पास, सिफली जादू भी नहीं ना, जो है हमारे अंदर वो असली चीज़ है ना नकली चीज़ है। हमारे पास क्या है, 2 हाथ हैं है नहीं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, सर है, ज़रा मेहनत करना। वो सुबह को जो है एक तो सबसे पहला जो है मैसेज क्या लेना तो भाई जो है वाक़ईतन हम ना अपने बच्चे अजीज़ हैं, हमारी उम्मत अजीज़ है, तो कम अज़ कम इतना मजमा है, बड़ा कीमती मजमा, रात में जल्दी सो जाना, ज़्यादा से ज़्यादा जो 10 बहुत ज़्यादा 10:30 बजे, 10:30 के बाद जागेंगे तो उम्मत का गला घुट रही होगा, चाहे मौलवी साहब रहते, चाहे मुफ्ती साहब रहते, चाहे शेख रहते, चाहे दाई रहते, चाहे कौन भी रहते, उम्मत का गला घुट रहा। हदीस में है कि भाई जो है जो इमाम बखरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब कायम किए हैं कि इशा से पहले सोना सही नहीं है और इशा के बाद जागना सही नहीं है, लेकिन इशा के बाद उनके काम अमल करना है, सिर्फ और सिर्फ इशा के बाद। उसके लिए इमाम बखरी ने एक जो है
चैप्टर कायम किया है समर बिल इल्म, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए ईशा के बाद जाते हैं या घर वालों से कोई ज़रूरी बात हो तो, वरना भी एक चीज़ कौन अपना ले तो मैं साउथ अफ्रीका गए तो वो पूरा जो है मगरब तक सब बंद हो जाता, मगरब के बाद पूरा जो है बंद है। यहाँ जो है क्या होता है जद्दा में पूरे मिडल ईस्ट में वो क्या करें पूरा जो है वो क्या करते हैं हमें बदल गए। हमारे एक समीउल्लाह साहब थे खुदा के वाइस प्रेसिडेंट थे इंतकालों का अल्लाह के वली रहमत करें न क्या बोले तो ये की साजिश ये साजिश करेंगे तो मैं कहीं को जी तो मालूम न एक साजिश करो कहीं को जाती नहीं। ये जो है ईशा के बाद सोना जो है ये भी जो है किसी हाल में खुसूसन दीनदार भी जो है इसके में बहुत बड़ी भलाई है। रात के 11 बजे आता था 10 बजे खाने के वास्ते। हाजी भाई जो है जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते थे वो सुन्नत है, हुजूर क्या खाते थे वो भी सुन्नत है, हुजूर कब खाते थे वो भी सुन्नत है। असल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में असर के बाद खाना साबित है सब, और जब ये होते हैं तो रोज़ा रहते या तो मगरिब के बाद खाना सुन्नत है सब। ज़ोहर से पहले असल जो है दोपहर खैलुल्लाह है ना, ज़ोहर के बाद नहीं, नमाज के बाद सोना सुन्नत नहीं। असल जो है ज़ोहर के पहले खा को थोड़ी देर लेट को जाकर ज़ोहर पढ़ना, फिर ज़ोहर में काम में लग जाना उसका। खैलुल्लाह का मतलब ये नहीं खा ले आराम से ज़ोहर के बाद खा ले कसर तक सोने का नाम सुन्नत नहीं। हमें क्या करें एवरीथिंग जैसा कस्टमाइज कर लिया है नहीं, हमारे अंदर ये बात पैदा होना। रोज़ाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा दो खाते थे। अब चलो ये खा रही कौन भी रोकना नहीं तुम ना हमें या हमें दे देंगे। एक बार जैसा जो है एक इलाके में स्कूल खोले बेंगलोर में, और पूरे जो इलाका पत्थर पड़वा कर मुझे मशहूर था। अब ज़रा जो है थोड़ा बहुत मसला इलाका बन गया तो वहाँ जाकर छोटी स्कूल खोले, तो उसमें मैं जो है बात कर बोला भाई देखो काम करो, हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाते रहे तो अब से 2 दिन खाओ, एक दिन जो पैसे बचाओ तुम्हारे बच्चे को लगाओ। तो 8 दिन के बाद पूरे मोहल्ले मशहूर कौन आया था गोश्त नहीं खाना कौन से डाला गया हिस्सा हमारा ठेमन में की बात। तो भाई जो है आजकल हर चीज़ को मैं नेगेटिव लेते हैं, तो भाई जो है हमें पॉजिटिव लेंगे वो जागता के रख डालो। मैं जो है वो सा भी काम नहीं शाह की नमाज के बाद अगर बच्चों तुम्हारे अजीज़ हैं हमें क्या करते मकतब में पढ़ाती हूँ मदरसे में पढ़ाती 9 मत सुबह यमुना और रिस्का पढ़ाते सुबह का सोना रिजक को तंग कर देता। कौन बोले सो सरकार बोले सो, कौन 100 नहीं बोले कौन बोले सरकार बोले सो। और फिर एक हदीस में है उर्दू क्या फरमाए कि अल्लाह ने बरकत रखी है सुबह के कामों में, अल्लाह ने बरकत रखी सुबह काम में। मैंने जो है सुबह को 8:30 तक सोते रहा था, पूरे मुसलमानों की दुकान 11:30-12 बजे खुलती है स्पेशली ने मैं तो पूरा जो है बचा था उठा रखा जाता सो नहीं मिला तो हस्बैंड गला दबा को यहाँ का वहाँ एडजस्ट करना को। अक्सर जो है बहुत सारे जो डेरी उठते हैं उनका माल मुश्तबा होता है, धोखेबाजी करते हैं। इसकी टोपी इस पर डालिया देखने का से मुसलमान नीचे देखने का से मौली साहब नीचे देखने का पूरा अच्छे यहाँ की टोपी वहाँ की टोपी वहाँ की टोपी डाल को पूरा नहीं हो रहा सब जब पहले में देखते वहाँ हो जाता। तो भाई जो है देखो शरीयत को छोड़ को शरीयत खाली जो है मैं अमामा मिल लिया मैं लिबास मिल लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह खाली वही किस्सा हो है नहीं। अब देखो ये कम अज़ कम इरादा कर लेंगे कौन तो ब्रोकर आ गया अभी तुम्हें कौन तो ब्रोकर ईशा के बस है तो गला दबा देखो तो ब्रोकर हम जिन आ जाते हैं बहुत आ जाते हैं क्या तो कोई पार्टी आ गई ईशा के बाद नहीं सोना कौन कौन सोती उनको जैसे घर के ऊपर क्या तो दलाते सा है ना कौन रोक रहा ईशा के बाद सो जाओ 10 तक सो जाओ ना और सुबह के बाद नहीं सोना। भाई जैसे सुबह जयनगर में जाकर देखे तो 4 बजे 4:30 बजे जो है जयनगर में कमिश्नर ने भाई घर के बाहर झाड़ते रहता पानी छिड़क रहा था। यहाँ कमिश्नर भी सी भी नहीं है C/2 ही है। इन्हें क्या करता है तो सुबह 11 बजे तक जो है ये क्या फजर की नमाज पढ़ता है एक दीनदार क्या करता सो फजर की नमाज पढ़ेगा सो जाता करता है उसकी भलाई है पूरी शरीयत के खिलाफ फजर से लेकर जोहर तक हमारा काम था इशराक के बाद से लेकर जोहर तक काम करना। तो हम ना 8 घंटे मिलती पूरा अल्लाह क्या करे नमाज के जरिए डिबेट करो दे रहे हैं हम ना ये वक्त ये काम करो क्या तो ये काम स्पिल होगा तो जोहर के बाद क्या करो थोड़ी देर जो बहुत 6-7 घंटे काम कर डाले थोड़ा खा को सस्ता लियो तुम्हारे जिस्म का हक है। फिर जोहर के बाद जो है क्या करो काम पूरा कर ले असर से पहले घर को आ जाना। असर के पहले साफ घर को आ गए तो असर से इशा तक साफ घर में रहे तो ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ती कहाँ भी जाने की जरूरत पड़ती नहीं। बच्चों को होमवर्क करो ये करो मारो बच्चों को भाई बच्चे हाथ से निकल जा रही क्या भी नहीं होता। हमने अच्छी तरह याद है कि अभी जो है हमारे वालिद बस कंडक्टर हाँ मरगी वाले थे मरगी में से सिरा वाले मेरे वालिद थे हमारे नानियालपुरा मरगी का ठीक है टुमपुर में बहुत सारे दोस्त आए तो शाम में क्या करते उनकी मॉर्निंग ड्यूटी रहती 6 to 2 शाम में खाली उनको जो है 70 की पढ़ को थे सो लेकिन पेपर पढ़े से पढ़े पढ़ो पेपर ले पड़े कहाँ बाहर पढ़े पेपर ले उनको पेपर पढ़ने पड़ते हमें किताब पढ़ने पड़ते थे हमने कभी ट्यूशन की जरूरत पड़ी नहीं है नहीं खाली पढ़ने बैठो होता है
ध्यान जो है पूरी तरह शरीर के खिलाफ चल को बच्चे को क्या करते हैं तो आखिर में हम वो कॉलेज करते वो अकेडमी करते हमारे ज़माने में हमारी लास्ट बैच विदाउट जो है नीट जो है PUC के मार्क्स को हमें MBBS करे सो हमें MBBS के मार्क्स को MS करे सो ठीक है। तो खैर अभी जो है नीट रहते IIT रहते अगर हमारे बच्चों को कम अज़ कम जो है पेरेंट्स के टीचर्स जो है बच्चों के धनवाली रहेंगे घर में बात डालें कि भाई जो है हमें भी ईशा के बाद सो जानी तो मैं भी ईशा के बाद सो जाओ बोलना बच्चे को सो जाओ तो मोबाइल हमारा 300। तो एक पड़ोस के जो है डॉक्टर हैं जावेद इकबाल को माशाल्लाह अच्छी बात करते हैं उन्होंने मोबाइल की हैबिट जो है बच्चों को नहीं माँ बाप को बर्बाद करना चाहिए। तो उसके से क्या करो बोलते हैं तो उन्होंने हॉल में एक बॉक्स बना दो नहीं सब बच्चे मोबाइल नहीं दिला तो होता नहीं ठीक है दिलाओ भी कोई को बता नहीं भाई जो है ईशा की नमाज पहले खा ले पूरा तरतीब बना ले उसके बाद क्या करें सब लोग मोबाइल डिपॉजिट कर लो चलो मोबाइल मैं भी रखती हूँ देखो का नामा बाबा भी बोलना मैं भी मोबाइल रखूँगा रखो पूरा रखो ला कर डालना एक बार अम्मा करने के लिए रहना एक बार बाबा करने रहना एक बार बेटे करने डालना कि तो अम्मा जब बाहर खोला बाद में नहीं खोलेना मैं क्या गेम्स देखना करो। ये उम्र में शादियाँ हो को बच्चे हो को इनको इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी सीरियल है इनको बच्चे को जो है वही टीनेजर्स नहीं देखना हो पार्ट 4 नहीं देखना उन्हें जो मौलवी साहब अच्छे अम्मा मौलवी अम्मा अच्छे देखने जो है बहुत रखे के पाबंद और वो बच्ची को क्या नहीं करना पड़ता उसकी भला ये एवरीथिंग बच्चों का गला हमें दबा रही काश के जो है हमारे अंदर ये बात पैदा होती कि भाई लाख को रखना ले बेटे तो आज के लिए मंडे बच्ची के पास के लिए तो सुबह में खोल को के लिए हाथ में देना मोबाइल क्या अभी हमें जो है प्राइम मिनिस्टर कौन में मर गए ठीक है रात में मैसेज आ रहा कौन तो क्या तो वैसा करना को तो भाई क्या करना एक जो है नोकिया मोबाइल रख डालना क्या तो इमरजेंसी नंबर या रात को कांटेक्ट करने का लेकिन बिजी 11 बजे भी फ़ोन 12 बजे भी फ़ोन में अब भाई क्या होता है वो जो है जो आदत डालते हैं बच्चों को टीचर्स भी तरबियत नहीं करते माँ बाप भी तरबियत नहीं करते वो बच्ची को एडिक्ट हो जाते फ़ोन की शादी होने के बाद भी जाको फ़ोन में बैठे रहती है जाको वही जो है बहुत सारे जो है आजकल खुला और तलाक का जो है जरिया जो बन रहे फ़ोन बन रहा है। बेंगलुरु कमिश्नर ऑफिस हो गए तो अक्सर जगह बुरखे नजर आते हैं क्या फैमिली कोर्ट्स कौन अम्मा से तरबियत करे सो टीचर ने तरबियत करे सो ये बच्चों को जो है ईशा के बाद इतना बड़ा एहसान करते हैं ईशा के बाद सो जाना 10 बजे जो है पूरे लेटा हो जाना सो जाओ अगर लेटा न करके सोते बच्चे सो जाओ अगर बोले हाँ खाना इन्हें आया बाबा 11 बजे बहुत बड़ा काम करगा क्या कि बहुत बड़ा आसमान दौड़े का वो दिन का काम भी नको दुकान भी नको वापिस भी न भाई चलो 2 to 10 अगर जो है ड्यूटी है लगभग और ड्यूटी से तो भी जो है हाँ ना आवाज़ कराने खा लेना जट सो जाना कुछ सिखा डालना बाबा कुछ सिखा डालना ये जो जब तक नहीं होता बच्चों को हम जो है जब तक जो है ये क्या होता है हाइजीन है क्या बोलता है हेल्थ हाइजीन नहीं टाइम हाइजीन है खाली अपने बच्चे कपड़े पहन लो पाक साफ पहन लो ब्रांडेड शूज है भाई टाइम हाइजीन सिखाना इसको बोलते सर्केडियन रिदम है ना सुबह के बाद सोने में जहाँ हदीस में 9 तो सुबह 9 इसका ये भी रिसर्च आर्टिकल है कि सुबह में जो है अलीमनी एक तो फ्रेश एयर होता रात तमाम जो ऑक्सीजन क्या करते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स डिस्क करते हैं सुबह में फ्रेश एयर रहता पोल्यूशन नहीं रहता पूरे जो है जाकर जो हैवी पार्टिकल्स रहते हैं इसमें हवा में वो जो सेटल हो जाते हैं बाकी जो है पूरी तरह ये हो जाते हैं बाकी पूरी तरह प्लांट्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं ऑक्सीजन निकालते हैं पूरे किसे का तो गैर को उन्होंने जाग जब सुबह लाल बाग देखे तो पूरा उनका था ये जो 2-3 आदमी नजर आते हैं कबल पर में रोज करती हैं हर इसमें क्या उनको सेहत की जरूरत है इसे नहीं देख बैठो जैसे पूरा था पुरुष उठा क्या जो है उल्टा पड़ रहा था और घर में भी जो बहुत सारे बच्चे हमें ये का रिसर्च करे घर में स्कूलों में बच्चे आते हैं बगैर नाश्ते के आते हैं कई को तो जो है अम्मा रात को देरी सोई वो अम्मा देरी सोने का वजह बाबा अभी अम्मा बाबा जो है बच्चे का गला दबा सो अब उन्हें उसको गया नहीं अभी जो है कब तो आपको ऑटो ड्राइवर उठा था क्या बेल बजा था तो जो है गया नहीं करे उठ रहे उसके बाद जो अरबी में बोलते थे उठ रहे तो अरबी उनकी ठीक है यानी अभी तक जाता नहीं तो मर जाओ चल जा आगे न खड़ो जाता उन्हें और उनसे लड़ाया लेटे लड़ाया जा भाई जो है वो जब बैग ढूंढता सोने हाँ ये हाँ चुका लेना जाको ऑटो वाले ने चुका लेना वो बच्चा ने चुका लेना कभी क्यों हमने मारा कहते बच्चे आप उन्हें मानो हाँ जाते पीटी मशरत से मारा जो बच्चे की उठान आप लोग क्या करते हैं माँ बाप आप हाइजीन नहीं सिखाए उठा भी मारा हाँ भी मारा वो बच्चा आपके लिए एसेट बनता वो बच्चे को इमेज बना रहे सो कह रहा फुटपाथ वो बच्चे को बना रहे हैं जो रोडी वो बच्चे को बना रहे क्या डबल डॉन समझ में आ रही बात भाई जो है हमना के भी बड़े डॉक्टर की जरूरत नहीं है जरे बन जाने 100 में 1-2 बन जाने लेकिन हमको जो है इंसानों की जरूरत है इंसान को जो है वही माहौल में बनेंगे जो माहौल इस्लाम ने दिया एक तो ये क्या है भाई प्योर एयर
दूसरा क्या है कि भाई जो है सुबह में ह्यूमन कॉर्टिजोल करके जो है एक हार्मोन होता है भाई ग्रोथ हार्मोन करके, उसका लेवल जो है मेजर किया गया, अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा रहता हो। जो बच्चे जो है सुबह में जो है उठ जाते हैं तो उनका जो है ग्रोथ बढ़ता है। तो हदीस में कहते हो, हदीस को जोड़ो तुम्हें कि भाई जो है जी अल्लाह ने बरकत रखी सुबह के कामों का मतलब क्या है, हमारी आंखें और ज़्यादा तेज़ होते हैं, हमारा दिमाग और ज़्यादा तेज़ होता। उसके बाद से बोलते थे हम ना बचपन में वालिदा और सो जाओ उसको को पढ़वा, उसको को पढ़ा तो पत्थर के लेके हो जाता, उसको पढ़ ले, सो जा कहते हैं। हमें सब बचपन में सभी ऐसे बनाए नहीं थे बा क्या भी रात के 11 बजे सुनेगी, 12 बजे सुनेगी, 1 बजे। अक्सर बच्चे स्कूल में ऐसा चेक करते हैं नींद में रहती हैं। ये क्या करें, हमारे टीचर्स से कॉन्फिडेंस में लेकर बच्चे को आज इतना पूछे बेटे तुम्हें कब से तो अनफॉर्चुनेटली ये है 3-4 बच्चों से बात पता चली। मैं सुबह 4 बजे सोया, कितने बजे मोबाइल हाथ में, पहले क्या था नोकिया था, अब इसके बाद ये सीरियल, उसके बाद वो ये सीरियल, उसके बाद वो सीरियल। और दुश्मना तो पहले जब ले कुछ हैं पूरे वल्चर्स ऐसा इनको मुझे किस तरह जब ले कहीं खाया जला के दिमाग को उनकी सोच को मुझे उन्हें कपड़ा ओढ़ने को जो है देख लेता है क्या तो भी देने की ज़रूरत है, अब हाथ में ज़रूरत है। यहाँ जो है वालिदैन अपनी जगह, इसी तरह बच्चे अपनी जगह, बच्चों को बर्बाद हमें कर रहे हैं। तो भाई ये इरादा आज कर लो इंशाल्लाह। हमारे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स भी बात करेंगे। 850 अगर बच्चे हैं, 850 बच्चों का अगर स्लीप हाइजीन हमें सिखा डाले, बहुत बड़ा एहसान करें, बहुत बड़ा एहसान करें। तो भाई क्या भी और ज़्यादा दूसरा करने की जरूरत पड़ती नहीं हो। बच्चे जल्दी सो गए, जल्दी उठ गए तो बच्चे जो है क्या होता है, हेल्थी माइंड भाई जो है साउंड माइंड इज साउंड बॉडी। साउंड बॉडी के लिए क्या जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन और ग्रोथ हार्मोन। अंदर ग्रोथ हार्मोन, बाहर का ऑक्सीजन, इससे जो है उसकी बॉडी ग्रोथ होती है। और फिर जो है माहौल इस वक्त खामोश, सब जगह जो है खामोश रहे, पढ़ने भी आसान, जैसे आदमी फ्रेश रहता। उठते ही किसल देखें किसल उठते हाँ हो गया तो मार रहा देखें, उठते सुबह का कैलेंडर देखें, उठते आदमी फ्रेश रहता, आदमी का जो है सुकून रहता। आदमी जो है फ्रस्ट्रेटेड कब रहता तो रात में अक्सर नया जो मैं खाना में देखे कब होती है क्या के बाद अब पूरे रिसर्च के लिए पता नहीं जाता। नहीं तो तुम्हें कर ली ना लड़ाई कुछ लियो बासु तो टीचर को पूछो, घर में पूछो, अक्सर लड़ाई शामिल होती है। एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड उस वक्त जो है माहौल की वजह से। और फिर जो है पहले क्या होता है, ऑक्सीजन कम है, हर चीज़ कम है, आदमी को जो है भूखा जो है तो चिड़ करता था। नींद कम हुई तो आदमी जो है चिड़ करता था। अब उन्हें क्या होता, अब उठे तो जरूर टूंगे तो कौन दे क्या होता। तो इस तरह जो क्या कर रहे हैं हम लोग, छोटी छोटी चीज़ जो शरीर की छोड़ा आपको बड़ा खावा देखो इनसो फाउंडेशन क्या भी नहीं क्या पेंठोस बनाते हैं, कैसा बनाते हैं भाई ऊपर गए तो ना वो जो है क्या को मारा वाला पीछे गिर जाते, पेंठोस बनने से पहले गिर जाते। समझ में आएगी बात। तो इसके से बच्चों का फाउंडेशन एक दूसरा करना। तो हमें अगर चाहते हैं कि वो जो है भाई बने जो अपने भाइयों को कार दिलाएं, वो बहन बने जो अपनी बहन का घर बसाएं, वो टीचर बने और टीचर्स को तैयार करें, वो मैनेजमेंट बने और 4 मैनेजमेंट को तैयार करें, वो कॉलेज बने जो 10 कॉलेजों को तैयार करें। मैं मेरी कॉलेज, मेरी स्कूल, मैं जो है मुसलमान नहीं, कभी मुसलमान सेल्फी सोच नहीं सकता, मुसलमान सेल्फलेस होता, बल्कि जितने गैर है वो भी हमारे हैं। बल्कि चरीन परिंद अगर मैं बोलूँ ये कुत्ते बिल्लियाँ हिंदी सभी हमारा सब खुदा के मखलूक ना। हदीस में क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ये अल खल्क़ या अल्लाह फरमाया पूरी मखलूक अल्लाह का गुम्बा। और जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद वो लोग हैं जो मखलूक के साथ एहसान करें। तो हमको अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद मखलूक के साथ एहसान करना। सो जितने जो है हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, दिल्ली से सब हमारे सब भी जो है इब्न आदम हैं, सबके साथ एहसान करना। सो अब सबके साथ क्या करने से हमें सबके साथ जो है खींच नहीं सो दे रहे हैं। आमतौर पर हमारे मेडिकल कॉलेज में जितने, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं हम, तो वहाँ अक्सर बमाना कहीं ಏನು ಮಾಡಿರೋ ನೀವು इंडिया ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳೋ। अब क्या बोल रहा हूँ तो ಏನು ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ನೋಡೋಣ। अब वो ज़माने में भी हम क्या करते हम भी गिरे तो भी क्या नहीं लगना, नाक को मट्टी नहीं लगा पति यार ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕಾನ್ಸ್ बतामी ये खानो आ मैडम ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ। तो अब हाँ ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮದು है नहीं। सब जो है बॉलीवुड को दिया सर, क्या दिया सर, सब लोगों को परेशान कर रखो, नाच को गा को उनके पैसे खींचने वाले। हमारा जो है 1947 से लेकर लास्ट सो मेनी ईयर्स, मोर देन 75 ईयर्स एज ए कम्युनिटी कोई जो है कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन कंट्री को नहीं है। क्या तो एक्सेप्ट इट। कहाँ देखो तो ये नहीं बोलना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इंडिया इज सी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो जो एक बच्चा रामेश्वरम का जो मच्छलारे का बेटा था, उनके बाप जो मच्छलारे भी थे, फिशरमैन भी थे और नमाज भी पढ़ाते थे, इसके इमाम भी थे।
तो उसके बाद जितने पैसे नहीं थे कि स्कूल में पढ़ सकता था, वो बच्चा जो है क्या हुआ, मेहनत कर को जो है पेपर डाल को भाई जो है पेपर यहाँ से लेगा वहाँ लेगा, वो ज़माने में ट्रेन आती थी, लाखों हर घर में पेपर डाल को अपना कॉलेज स्कूल का एजुकेशन कर को स्कूल कर लिया। फिर जो उनके फूफू जो है बैंक बैलेंस बेच को कॉलेज में दाखिला कराए, वो बच्चा आगे चल को क्या बने भाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो इंडिया में जो है एक रामेश्वरम टेम्पल टाउन हो, मच्छल वाले का बेटा, वहाँ से उन्हें दिल्ली की सीख पा सकता है, तो कोई मुल्क का बता नहीं सकते ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है दे सकता है अपनी मिनॉरिटीज़ को। ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ा, इंडिया में ये हो रहा, इंडिया में हो रहा, वो जो है हर बार जो है गाना छोड़ा। इंडिया में जो सी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अल्लाह जो हमारा मुल्क है, मुबारक मुल्क है, अल्लाह ने हमको मौका दिया है, हमें अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो हमें ना खुद तो बोल रहा भाई, अगर इतना हमें जल्दी सो को जल्दी उठना सीखे तो हमारे बच्चे डगडिक बनना भूल जाते। अगर ये बच्चों को जल्दी जो है माँ बाप जो है जल्दी सोना सिखाना दे तो वो बच्चे जाकर जो है कह रहा फुटपाथ है नहीं, जो चौक में बैठ कर जो है गैर गलत बातें से जो है सीखना छोड़ाती। अक्सर बेकार में बैठती से कब करता, रात के जो है 9-10 बजे बैठती, 11-12 तक वहाँ जो क्या होता, कब तो भी जो है कौन तो भी एक आदमी पहले से ज़्यादा तो नहीं घर में लेटाने की, 11 बजे 12 बजे आने की आदत है। अब क्या तभी जरूर से डर लिया तो जब बैठता, हाँ जब फुटपाथ बैठता, पता होता क्या वाकिसा है, थू है बाबा मुसीबत कहीं तो भी कर लेगा है कि अरे मैं भी ऐसा था। सो हाँ जी बोल तो आकर क्या करता, मार रहे पे गए कटा सामने, एक क्या करता है नहीं देख रहे था ऐसा। ये पिता से क्या था, शराबी बनता। तो शराबे बनाने से कौन, स्कूल वाले टीचर्स, अम्मा बाबा। ये बच्चों को डगड़ा बनाने से कौन, बच्चों को जो है भागने से बच्चों को भगाने से कौन, बच्चों की जो है जहन खराब करने से कौन। ये स्कूल में खाली क्या करते, गाइड कर लेते हैं। स्कूल वाले ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं, दे आर गाइड्स, दे आर नॉट, बच्चों को रिफॉर्म नहीं कर सकते। और आपको मैं क्या भी बोल रहा नहीं, जाको हिमालय का पहाड़ तोड़ ले का सब को बोल रहा हूँ, कम से इतना तो ये करेंगे, इरादा करेंगे कि क्या करेंगे इंशाल्लाह, ये भी बच्चों को जल्दी सुलाएंगे और जल्दी उठाएंगे। तो क्या से जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे। हमें जो इंशाल्लाह कसम खा लेंगे यार 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखेंगे। मैं 10 बजे तक देखो बोल रहा हूँ, जाको मुफ्ती साहब देखो बोले क्या 10 बजे देखो बोल रहा नहीं, 10 के बाद नहीं देखेंगे, तब तो करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। जितने टीचर्स हैं 10 बजे आप हो जाना कौन तक जीत लेंगे मर जाते क्या तब हो जाते, आसमान गिर को पड़ेगा, जमीन फट गई तो सुबह तक देखे तो ऐसा से देखे अभी वो करते नहीं, ठीक है। और सब इमरजेंसी रहा तो कौन ना कौन आ जाती गाड़ी लग क्या खो अरे बाबा कर मोबाइल ऑफ हो जाना, मोबाइल ऑन हो जाए, चलो डॉक्टर्स हैं या कोई ड्यूटी कोई अलग बात है। तो भाई ये जो है साथी अगर तय कर लें तो इससे जो है बहुत बड़ी रुकावट हम बच्चों की दूर कर रहे हैं, खुद अपनी दूर कर रहे हैं। ये बच्चों की तरबियत में जो सबसे बड़ा मसला है वो असल जो है बच्चों का पूरा निज़ाम चेंज होना। ये अब जो है जापान के जो है जिन डॉक्टर को सिर्फ इस पर सर्केडियन रिदम कर को यानी जिस्म का ऑटोमेटिकली निज़ाम अल्लाह 24 घंटे का बनाया है, वो कैसे उसकी नशोनुमा में जरिया बनता, उसका जो है उन्होंने रिसर्च पेपर पेश किया, उसको नोबेल प्राइज मिला। ऑटोमेटिक पूरा उठा कर दी, जब 100 बोला अल्लाह तो 100 जागते। अब जाओ तो मैं मिडिल ईस्ट में रात में पूरे जो है एक जगह में फ्लड लाइट्स है, क्या रे बाबा तो नहीं बच्चे पूरे रात में खेलते सो, दिन में बहुत गर्मी होती है। अच्छा भाई जो है एक बार रमज़ान में गए, एक बार रमज़ान में मौका मिला तो गए, तो भाई जो वहाँ के साथी हमारे पूरे रमज़ान में शाम में मगरिब वास को होता सो, फिर सुबह तक शहरी तक फजर के बाद सोए तो असर कोट नहीं करे। वाह कौन सी भला वहाँ छोड़ो भाई सऊदी में क्या कि अल्लाह दिया है पेट्रोल की खाले पिलक सोई। यहाँ इंडिया में एक माले को में गए मैं, एक बड़ा मदरसा बहुत पुराना मदरसा, उनकी जिम्मेदार सेक्रेटरी से मिलना था, ठीक है। तो भाई जो है मिलने गए तो जो है जैसे बोले अपॉइंटमेंट होना, दूसरा प्रोग्राम MBA का प्रोग्राम था माले को में, दूसरा प्रोग्राम भाई जाना है ना टाइम जो भाई उनको बोल के भेजे रात में हमें जो है मिलने के वास्ते बेस्ट टाइम क्या सुबह में 8-10 बजे, मुझे सुबह में नहीं मिलता मैं, फिर क्यों हमें समझेगा तो पढ़ाती हैं कि क्या तो पढ़ती हैं नहीं मंजे जो है अपना टाइम जो है 4 बजे 3:30-4 बजे। तो क्या बोले मेरा आदत है बरसों से मैं सोता हूँ फजर की नमाज़ पढ़ को उठता हूँ तो जो है 2 के बाद ला हौला वला पढ़े। पूरा जो है हमारा निज़ाम क्या बन गया है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के निज़ाम के खिलाफ। तो भी इस्लाम के निज़ाम के खिलाफ हमें कर रही सो दो तरीके से पार्टे गैर कि कौन सी बला है तुमने कौन बोल रहा, हारी सो उल्टा करने सो हमें, धोखाधड़ी से हमें, झूठ बोलने से हमें, तुमने कौन झूठ बोलने से समाचार तुम बोल रहा, हम अमानतदारी करे गिरे नाखुश से बोल रहा,
खाली से दिखावे का क्या करते, दिखावे का इस्लाम दिखाते, उनको अंदर चुपका, अंदर खाली है हमें, जब हम देखते हैं तो अंदर आग उछलती है, उनको आग आ जाती है। देख ले फिर ये इस्लाम देखा क्या समझती है, देख ले नमाज देखो, हमारा बुर्का देखो, दाढ़ी देखो, अम्मा मदे क्या समझती, सब ऐसे ही करो। उन्होंने जो है उन्होंने क्या समझती, इसकी वजह से लोग चोर आ रहे कहते अस्तगफुरुल्लाह। एक तो हमें इस्लाम को बदनाम करे नहीं करे। हमारे बचपन में मैं देखो नहीं भाई जो है बचपन का भी हमारा 70s का, ठीक है, कौन तो जो है सिर्फ चेहरे पर दाढ़ी, बहुत कम लोगों दाढ़ी रखते थे उस वक्त, बहुत कम लोगों छुपा पहनते थे। कौन तो भी मुसलमान गुजरिया तो भी ऐसा खड़ा हुआ था गाना हमारे बचपन में, ऐसा खाली दाढ़ी में गुजरा तो भाई ऐसा खड़े जाते थे। और मुसलमान को क्या बोलते थे, साहिब बोलते, क्या बोलते अब साहिब रुजाक क्या बन गया, साबी बन गया। साहिब रुजाक साबी बने, हमें बनाने का सो एक तो विक्टिम का खेलना छोड़ा। आज तुम्हें तय कर लियो कि हमें इंशाअल्लाह कि भी जल्दी सुनाएंगे, जल्दी उठाएंगे। क्यों? हमको वो भाई बनना है, वो बहन बनना है कि भाई दूसरों की कॉलेज बनाना, जिसे हम देखो कैसा बनना ले सुनो, कैसा घर बनना ले सुनो, क्या करना है, लड़ना नहीं, बल्कि दूसरों के घर बसाना, खुद खा लेना हैवानियत, लोगों को खिलाना खिलाफत, खुद पहनना हैवानियत, लोगों का पहनाना खिलाफत, खुद मकानात को बनाकर बच्चों ने बड़ा बड़ा मकान बना दे, कागज सीधा कर ले को, ठंडी को बनाकर जो है ठंडे होना है। दूसरों के मकानात जब जो है बेचारी दूध पीते बच्चे को लेकर पूरा छत तक बकरा ऐसा रात भर खड़को है, इन्हें जो है 4 बेडरूम का घर बना को आराम से सोरास करते, वो सा जालिम है। इन दीनदार है तो क्या हदीस में क्या है, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया, साहबा रखा कौन मोमिन नहीं, हुजूर फरमाया खुद जो है पेट भर कर खा ले, उसका पड़ोसी सो जाए भूखा सो जाए। ये हमने तालीम मिली। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट जो है समझाते बच्चों को, कब होता, जब टीचर ने वो जो है वैसा दिखना, मैनेजमेंट वैसा दिखना, तब ये बच्चों को क्या भी बोलने की जरूरत नहीं। टीनेजर्स 12 साल तक बच्चा इमिटेट करता, 12 साल के बाद उन्हें खुद जो है सोचता ये करना नहीं करना। 13 ईयर्स के बाद बच्चे के अंदर जो है खुद उसके अंदर शऊर पैदा हो जाता, उन्हें क्या करता, सोच को करता। लेकिन 12 साल तक बच्चा अंधा तो नहीं इमिटेट करता, जो हजरत करती वो करता, पहले जो अम्मा बाबा करती वो करता, बाद जो हजरत करती वो करता। तो अगर जो है हम लोगों को बच्चों के अंदर अमानतदारी, सच्चाई, बच्चों के अंदर इफ़्फ़त, आगदामनी, हया, वक्त की पाबंदी सिखाना का, तो हजरत जो मैनेजमेंट करेक्ट वक्त है तो हेच्चे वक्त आती, हेच्चे वक्त तो टीचर वक्त आती। टीचर अगर बच्चे लेट आ रही तो वो स्कूल में टीचर्स लेट आ रही करो, समझ में आई बात। अगर बच्चे जो है बेकार बातें करेंगे तो टीचर बेकार बातें करेंगे करो, बच्चे नहीं पढ़ रहे तो टीचर नहीं पढ़ रही करो। टीचर पढ़ना करो, नहीं पढ़े क्या पढ़ाते, नहीं पढ़े क्या पढ़ाते, मैं बोलो पूछो क्या हाल ही आजकल की पढ़ाई ये नहीं है भाई जो रख ले कुछ चीज़ा नहीं, बोलो क्या वो हमारे ज़माने में 1 2 बकल मैसूर है ना, वो नहीं था हमारे ज़माने में। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार नहीं है। अब जो ठानी तालीम कैसी है कि भाई जो है जब तक बेस मजबूत नहीं होता बच्चों का, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लाते। कब लाते, जब हम ना क्रिटिकल थिंकिंग का तो क्या मालूम होना सुना, हम ना क्रिटिकल थिंकिंग मालूम नहीं है हमें, जो अल थिंकिंग छोड़ा को क्रिटिक बन गए, क्या बन गए, क्या देखा तो उन्हें ऐसा, उन्हें वैसा, इन्हें ऐसी, इन्हें ऐसी, उन्हें वैसी, ऐसी ज़िंदगी हमें गुजारे। तो जो है हमारे स्कूल पनपते हैं, नहीं पनपते। तो भाई जब स्कूल को बनाना हो तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है, अगर हमारे पेरेंट्स 850 पेरेंट्स हमारे पास हैं, कम से कम 600 पेरेंट्स होंगे, ये पेरेंट्स को जो है अगर जो है आपको PTM में बुला को तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं बोलने के बजाय कि भी वो पेरेंट्स को हमें अगर गाइड करना, आपको 600 पेरेंट्स को अगर रोक दे सकते हैं तो ये बहुत बड़ा और ज़्यादा काम करने की जरूरत है आपको। ये 600 पेरेंट्स, 850 में कम से कम 600 पेरेंट्स आपके पास हैं, तो भी इतना बड़ा काम करता हमारा, करेंगे इंशाल्लाह। ये कहानी होगी, ठीक है। दूसरी कहानी, ठीक है, लंबी नहीं बोलता, दूसरी कहानी तो भाई जो है मुख्तसर बोलकर भाई जो है देखो इरादा करो काम शुरू करना। क्या बनना हमें, वो भाई बनना जो मेरे भाई को, छोटे भाई को क्या दिलाना, कार, क्या देखेंगे हमारे टीचर्स जो है। मैं मैथ्स टीचर से बेहतर और बेहतर टीचर्स बनाऊंगी। छोड़ी ये बच्चे को मैथ्स टीचर बनाना, ये बच्चे के अंदर साइंटिस्ट बनाना, ये बच्चे डॉक्टर बनाना, ये मेरे बच्चे नहीं, सभी मेरे बच्चे। तो ये जो है मैं औरों को बनाना, ये जज्बा, मैं जो है मेरे जो है और कॉलेज बनाना, मैनेजमेंट क्या करना, उनकी कॉलेज पनपेंगे, उनकी कॉलेज पनपेंगे भाई, सब कॉलेज पनपे तो मंजिल मिलता सो, कहाँ जाकर क्या होता, पानी कहाँ था गड़े कुछ आता सो, मुझे कमिश्नर वहाँ मिलना सो, हाँ दुनिया में ले क्या करना, मैं हाँ इंशाल्लाह ज़रूर मिलता। ये जज्बे के साथ काम करना। दूसरी बात क्या करना कि भाई काम शुरू कर डालना, काम करते 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 भी कभी अब नहीं कैसा करना सो छोटा एक जो है कहानी, केवल छोटी कहानी जो है 3 के बजाय 2 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्या करते हो भाई जो है, एक लड़का MBBS किया कब, 1920 में,
वो जमाने में MBBS करना बहुत मुश्किल था, ब्रिटिश की जब को वहाँ पढ़ना था। उन्हें MBBS कर को वापस से माँ बाप कहाँ का तो तुम्हारा इसके पास का माल पे कर गाँव है मणिपाल के पास नॉर्थ कनारा में, वो गाँव का कर को MBBS कर लेकर आया। वो जमाने में क्या वेलकम उसका आते ही अम्मा बाबा बोले के बाद चल एक छोटी क्लिनिक बना, चल क्लिनिक बना को गाँव वाले को सर्व कर। तो बच्चा बोले नहीं अम्मा, बाबा बोले जा खरीदता अम्मा के पास अक्सर जगह अम्मा के पास बात चलती नहीं, ठीक है हम इनके पास भी सच है। बाबा जापान जाना आगे पढ़ने, वो समझ मालूम नहीं बा, फिर अम्मा को पूछे तो आप बोले जाकर हे उसे कन्नड़ में बोले इनके ओसिरो देने क्या है जापान होगा होगा ओपन मारो क्लिनिक स्टार्ट मारो ಎಲ್ಲ ಊರವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಓದಿಸಿರೋದು आज के अम्मा बोलती है अब देखो जैसे अम्मा जैसे टीचर वैसे बच्चे, जैसा जो बोलती नहीं जैसा दरख्त होता वैसे फ्रूट्स होगा क्लिनिक ओपन मारो। अब क्या करती है अम्मा बोला रही हो क्लिनिक पर जा। अब क्लिनिक 6 महीने इंटरेस्ट नहीं, लोग आते क्लिनिक बैठता हर वक्त जापान इसके वो ज़माने में जापान ज़रा 1918 के बाद भाई अभी कोई जापान तो कोई नहीं था, जर्मनी जापान लोगों के जन्म था, कोई जापान नाम बोल रहा था। तो मैं फॉरन रन के जाकर और पढ़ना क्लिनिक खोला। तो क्लिनिक जो है उसके बाद चलती थी। अब ज़्यादातर जो है अब मैं क्या करती हरिया वाले अच्छा खटमुट उठाती, बीमार है तो भी ज़रा क्या तो भी तेल लगा लेती, ज़रा खा लेती, सो जाती, उठ जाती। लेकिन बच्चे बीमार हो बुला लगाती, तो खाली बच्चों को बुला लगाते। किसे बुला लगाते थे? खाली बच्चों को बुला लगाते थे माँ बाप। तो भाई जो है उस माँ बुला लगाती थी वो बच्चे इसके मम्मी के पास। तो बच्चों को जो है क्या करता रोज़ खाली वो बच्चों क्या करता भाई बुखार खै हो रही बच्चे वो बच्चा रात में रोता है, अयो मैं 6 बीमारी में क्या प्रयास हुई है, क्या करना माँ बाप बात मानते नहीं मेरी। वो ज़माने में हिम्मत नहीं होती थी। हमें भी MBBS के दौरान भी हमें हमारे वालिद को कभी सामने होकर बात नहीं करते थे। हमें क्या करते थे दीवार के वालिद को साफ बोलते। MBBS में PUC में कहाँ बोलो MBBS कर लेते दी 8 को बात जी सर जी सर कहाँ दीवार के आड़े कब ये 19 कभी बोलो समय 19 जो है 80 to 85 की बात है, पुराने ज़माने की नहीं, केवल 40 ईयर्स के पहले। अब उन्होंने जो है क्या किया बाद में ये जो है रात में सोया तो उसको एक आइडिया आया, बड़ा आइडिया आया। क्या आइडिया अभी ये जो है अगर उसकी जो है सोच अच्छी रहती है, उसका जो है नीयत अच्छी रहती है, एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया उसे कि भाई जो है मैं अगर बदलना तो मेरे अतराफ के लोगों को मैं बदलना। जैसा जो है दोनों चीज़ों को गौरव में याद रखो, जब तक तुम्हें मैं करती जने उन्हें कभी कट्टा सोच उन्हें काम भी जो है नाम बोलती ज़्यादा छोटा घर बन गया तो क्या सब बदली घना, ठीक है। जब इसके अंदर एक बात है कि जो है आई कैन नॉट बिकम भाई जो है पावरफुल, आई कैन नॉट जस्ट जो है क्लाइम अप द लैडर टिल आई मेक पीपल अराउंड मी टू क्लाइम अप द लैडर। जहन में एक बात है तो उसके से क्या करना। अब एक आइडिया आया उसे। अब बच्चों को बुला लगाते थे, बच्चों को बुला लगाए बाद बोलना शुरू करा बीमारी के बाद तुम्हारा बच्चा अच्छा हो जाता, अच्छे पे दवा दे तो ये बच्चे पढ़ो तुम्हें जापान भेजो, तुम्हें नहीं भेजो। क्या बोला सब इन्हें नहीं गया। अब उनकी माँ कहती मैं अम्मा जापान कर जापान ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಔಷಧಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಜಾಪಾನ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಕಳ್ಸಮ್ಮ ಅವ್ನು ಓದಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ नाले का ಇಲ್ಲ 5 पैसे ಇಲ್ಲ 3 कासों थे जमाने 1 पैसा भी आप देखे नहीं रहेगा। हमारे बचपन में 1 पैसा था, 2 पैसे थे, 3 5 पैसे सब थे, ठीक है। मुझे काश ना जापान अंते जब ऐसा हर एक को बोलता तो चंद लोग उसमें ज़रूर डॉक्टर को पसंद करते थे। ऐसा डॉक्टर ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ तो क्या बोले ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕಾಸು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ नाले कड़ी चार आने जमा लेंगे ठीक है। क्या बोले 4 आने मेरे पास लग जमा डालना कि पूरे पैसे जमे बाद जब तक बच्चा बड़ा हो जाता पैसे जम को रहते तब भेजेंगे। हो वर्ल्ड आइडिया ला दो कल को एक 5-6 में मान लिए। अब वो जो है क्या करते इन्हें क्या करें वो आपको वो ज़माने में भी जो है वो पल्लों में बनते थे। आजकल सभी उनके पास स्पेशल पैकेट आते थे, ठीक है। पल्लों में बनते हैं, पल्लों में बन को निकाल को लागो 4 आने रोज़। फिर क्या करें तुम्हें रोज़ कहीं क्लिनिक को आती मेरा कंपाउंडर तुम्हारे घर को आता है कंप्यूटर रखा लिया एंड कंप्यूटर दवाई देने के 4 आने कलेक्ट करने। अब 6-8 औरतान डाले तो दूसरे औरतान क्या करते उन्हें करी कर मैं करी कर उन्हें, ठीक है। ये कह रहे बेंगलोर वाले बात करना नहीं, हम इज्जत से बात करना, आपको बात नहीं करना, ठीक है। हम लोगों को बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
मैं करेगा ना अब ये क्या करे 6 की जगह 8, 10, 15, 20 पूरे जितने इसके जो गाँव वाले थे चारा लग जमा करना शुरू करे। इतने पैसे हो इसके पास। अब पूरा क्या करता हूँ, जिसके पास चारा लेता हो डॉक्टर वो प्रैक्टिस भी कर रहा है। एक किताब 2 किताबें ले लिया, एक किताब में लिखता चारा ने डेट लिखता, इसका साइन करता, वो औरत का साइन करा लेता या तो हैबर्ट लगाता, और एक किताब रखता, इसके पास एक किताब उनके पास एक किताब, क्या गंगा अम्मा भाई फलानी अम्मा फलाने ये करके पूरे के नाम उसके ऊपर। तो इतने पैसे जमीन रोज महीने को बोलना तेरे इतने पैसे मेरे पास हैं, इतने पैसे मेरे पास हैं। अब दूसरा स्टेप क्या करें हमने, देखो छोटा छोटा काम जैसा हदीस में हमारे पास है, पूरा हम इस्लाम छोड़े, इसके वास्ते आज वी आर ग्रोपिंग इन द डार्क, है नहीं। तो उन्हें जो है क्या करें, अभी आगे क्या करें सोचो। हदीस में क्या है, छोटी नेकी बड़ी नेकी के लिए दरवाजा है, छोटा गुना बड़े गुना के लिए दरवाजा है। अब छोटी नेकी गया, उसके बाद जो है अब पैसे जमे। अब बोले तुम्हारा बच्चा पढ़ना नहीं, हाँ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 4 ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಆಯಿತು ನೋಡಿ। ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತೆ, ಜ್ವರ ಅಂತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ಗೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ, ಹಾಲು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದೇಹ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗ್ತದಮ್ಮ, ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕ್ಯಾಬಲ್ಯ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಐಡಿಯಾ? ಒಂದು ಹಸು ತಗೊಬಿಡಿ ಕ್ಯಾಬಲ್ಯ ಅವ್ರಿಗೂ ದಿವಾನ ಚೊಗ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಹಸು ತಗೋಬೇಕಂತೆ. ಹಸು ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಾನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಪ್ಪೋಸ್ ಪೈಸೆ ಇದೇನಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಡಿ ನೀವು. ಅದು ಕಾಸು ನಿಮ್ಮದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದು ನೀವು ಹಸು ಬಂದಮೇಲೆ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೊಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೀವು ಕುಡಿಬೇಡಿ, ನನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ओ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ पाइदो। तो क्या करें, 8-10 जो है औरतें दिए। अब वो 8-10 औरतें घर में आप सामने आपको जो है गायन पढ़ते ही दूसरे औरतें नन बेकू निंग बेकू करो, पूरे लाखों लिखा को पूरे गांव में हर घर में क्या हो गया, एक गाय। और फिर ने क्या करा भाई, पहले गिलास दूध बच्चा ने सेहत बनाया। देखो जो है आदमी के अंदर फिक्र है तो किस तरह जो है खुदा ताला चाहे मुसलमान रहे चाहे गैर रहने, देखो शक्कर अल्लाह का नाम लेकर चाय डाले तो क्या होता, क्या होती है? मीठी होती नहीं होती? गणपति का नाम लिख डाले तो क्या होती है? कड़ी हो जाती है। कड़ी होती है जी, मीठी होती है। अल्लाह का एक निज़ाम, जो काम करते हैं तो सभी अल्लाह के बनते हैं। क्या भी उड़ोनों को मुसलमानों को अगर अंदर है तो ईमान असल। आज हमें खाली जो क्या करते ऊपर रख ले, तो अंदर से खाली है हम लोग। अब क्या हुआ भाई, जो है सबको दूध लाखों से दूध देते हैं। अब इन्हें क्या करता, दूध को जो है जरा भाई जो है बेचता, अब दूध जमा होगा, क्या करना? तो भाई वो ज़माने में जो है मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, और आज तक जो है वो ज़माने की वन ऑफ द बिगेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है नाप के नाम है। बनाकर जो है बेच को, उससे उनको पैसे दिया, उनके गायों का पैसे जो है कर्जा फिट का, उनके पैसे पड़े, माहौल बनाया। नेक्स्ट क्या करेगा, अब भाई इतने पैसे मेरे पास है ना, ये कहीं को बेकार रखना, इसे इन्वेस्ट करना। हमें इन्वेस्ट करें तो मेरी साइट लेना, मेरा घर बनाना, मेरी कार बनाना, मुसलमानों की सोच। देखो आजकल मुसलमान गैर मुसलमानों की सोच में उन्हें क्या करें, उनको और आगे बढ़ाना भाई, तो उसके से क्या करना बताओ। उनके पास इंटरेस्ट जायज़ है, हमारे पास इंटरेस्ट जायज़ नहीं। बैंक खोलिया, क्या खोलिया? चारा कलर को बैंक खोलिया, तो वो आगे चल को सबसे बड़ी बैंक बनी। बैंक का नाम सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक बनी। तो जो है उसके बाद हाल ही में हो गया केनरा बैंक के साथ भाई जो है ये जोड़ा ले, सो सिर्फ वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक बनी। वो बैंक खोलने के बाद फिर क्या करें, अपने को देखो पैसे जो ये पैसे करो यहाँ डालो वहाँ डालो गया। वो ज़माने में एक नॉर्थ इंडिया में एक छोटा जो है काम कर ले था, कौन? धीरूभाई अंबानी को। उन्हें धीरूभाई अंबानी कौन करते, उन्हें खतर में साथी यहाँ वहाँ एक पेट्रोल पंप में काम कर ले था। उन्हें इंडिया में आपको क्या करना गया, उसे खर्च होना था, उन्हें ढूंढने था। तो भाई कैसा ही कॉन्टैक्ट करो, उन्हें आपको देख बात तो खर्च डाले नफा डाल को देना, अच्छी बात। तो भाई जो है वही आदमी जो मालपे का खड़िए का डॉक्टर
माँ बाप भी मुखलिस थे, उन्हें भी मुखलिस था, माँ बाप की नीयत अच्छी थी, उन्हें भी अच्छा था, तो क्या बना वो जो है रिलायंस इंडस्ट्री का जरिया बना। अब शादी हुई नहीं मुकेश की बेटे की, क्या नाम बेटे का, क्या नाम है जब सबको मालूम, बच्ची का नाम उसका क्या, जिसका दुल्हन का नाम क्या, राधिका का। देखिए कितना जो है कैसा माशाल्लाह, ठीक है गुड माशाल्लाह, कम से कम मेरा करंट अफेयर्स। तो अभी जो है 5,000 करोड़ की शादी हुई, लेकिन उसकी उठान रिलायंस की कौन जैसा खर्च नॉर्थ कैनरा का इन सिंडिकेट बैंक में लियो देते रहो, लियो देते रहो, लियो देते रहो, ये बड़ी बैंक बन गई है नहीं। तो भाई जो है इस तरह उताश नहीं हुआ इन्हें, बात क्या करें इन्हें एजुकेशन में कैथोलिक करना कर को भाई, एजुकेशन में जो है जी कदम रखा और स्कूल खोलिया, कॉलेज खोलिया, वो जो है मणिपाल कॉलेजेस, मणिपाल एजुकेशन फाउंडेशन। हमें गए थे कब 80s में जाते थे जमाता में सब, तब भी उनके पास मणिपाल एक छोटा सा गाँव गुरबिन में मदगिरी के सर का भाई, वो जमाने में 70 कंट्रीज के बच्चे थे, कहते 70 कंट्रीज के बच्चे। हमारे पास 4 हो गए तो कितने नहीं, सदर साहब भी कितने नहीं, सेक्रेटरी साहब भी कितने नहीं, मुफ्ती साहब ऊपर बढ़ जाते है ना कि भाई हमारे तक थे। ओ हाँ कब 70 कंट्रीज के बच्चे कब 80s में। उनके पास 4 मेडिकल कॉलेज हैं मणिपाल भाई, और दूसरी शारजा में है, तीसरी नेपाल में है, चौथा वेस्ट इंडीज में है। कहाँ से बैठ पे हाथ से जैसा टाटा बिरला इंडिया को रूल कर रहे हैं, मणिपाल ग्रुप जो है इनको बड़ी ग्रुप बोलते हैं, कर्नाटक को रूल कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऐसा हुआ भाई, चारण ऐसा हुआ, हमें चारण ने बचा सकते हैं 2 चीज़ें, आज टाइम का टाइम बचाएंगे, चारण ने बचाएंगे। ये हर चीज़ को बच्ची को यूज जोड़ा होना, यूदों कपड़े होना, 26 कपड़े होना, अब ये उसमें भी कपड़े होना, कैसा 26 बारात को होना, वो शादी के कपड़े होना, ये सब जरा दिन निकाल लो। कौन करती है बच्चों को जहन में डालो, वो 2 कपड़े बस में थे, क्या भी होता नहीं, वो पुराने वो ब्रांडेड शूज़ होना, वैसा कपड़े होना, मैचिंग जोड़ा होना, ये तमाम जो हमें चिल्लर चीज़ों में पड़ गए। इन्हों जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया इज द नॉलेज कैपिटल, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की इंडिया, ऐसा नहीं बनी। दुनिया में बड़े बड़े जितने से जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, 25 बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज के CEO इंडियंस हैं। एक मेरा दोस्त है अमेरिका में जो मेरे साथ था, टुमकुर कच्छ गोदी तो पे है ना उनके, डॉक्टर इम्तियाज करके, तो जो है तो वो जो है US इज इन इम्यूनोलॉजिस्ट, तो आए थे अबाउट 6-7 मंथ पहले, तो बोले जो हर जगह जो है जैसा पहले जूस थे, अब पूरा इंडियंस हर जगह जो है छाए हुए हैं। और उसकी वजूहत क्या बोले उन्होंने, 2 रीजन्स बोले। ये क्या भाई, इंडियंस आर टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग। कौन अक्सर गैरा तो मैं भी काम ही नहीं हुआ, 0.01% समझ लो, 100 पे 1000 में कहा इंडियंस आर टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर स्किल्ड। दूसरी क्या भी बात बोले, इंडियंस आर डाउन टू अर्थ, ह्यूमिलिटी। आज हमें टेक्निकली हमें आज जो है क्या बोलो, वे हाफ कुक बीन्स, और भाई जो है आधा तीतर आधा बटेर, उसमें आधा जर्रा पढ़ लिया तो उन्हें टिकता नहीं, थोड़ा पढ़ लिया तो गांगी जो उठते होता। कब देखो जल से जुलूसा हरा पैपा भाजी ये जो सब छोड़ाना, सब ये हमें छोड़ाना, हमारे अंदर जल से जुलूस छोड़ाना, ठीक है। तो हाफ बेक बीन्स नहीं, टेक्निकली दे आर गुड, वेरी साउंड। एवरी 5th डॉक्टर इन US इज इंडियन। USA में, इंडिया में एवरी 5th डॉक्टर इन US इज इंडियन। उसमें 99% आर हिंदूस, 25 बड़े कंपनी CEOs ऑल आर हिंदूस। इन्होंने तुम्हारी शादी पढ़ पाई सब, कई को उनके अम्मा यहाँ जल्दी उठाए, 4 मिनट को पानी ना लिए, मेहनत करे। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बोलते, तीसरा जो है किस्सा छोड़ा तुम्हें, इंसिडेंट बोलते हैं। हिरूर के एक डॉक्टर साहब थे, हिरूर तुम्हारे से करीब है, उन्होंने पूरे लैंड लॉर्ड थे, तो उनका जो है उनका बच्चा पढ़ना में उन्हें जो है एक उसका क्लासमेट बोमन था। उन्होंने क्या करते थे, उनका जो है क्लासमेट के वालिद को पढ़ाते थे स्कूल में, मेस्टर थे उन्होंने, मास्टर। तो घर के जा काम करते या फिर लाखों देते, इन गाँव के बड़े चर्चा थे, लैंड थे, लेकिन ये बच्चा घर के काम करता उठाता बैठा। एक बार जाको बोले मेस्टो नन्नु ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿಲ್ಲ मेस्टो। तो बीवी अंदर से सुन ली, कौन मास्टर की बीवी, उन्होंने खुद मुझे बोले ये 85 years। तो अभी जो है अंदर सुन ಏನ್ರಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಂದು ಗೊತ್ತಾ, ಮಗು ದಿನ ಹಾಲು ತೊಗೊಬಾರ್ದು, ಅವನು ದಿನ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಮಾರ್ಕೆಟೇ ತೊಗೊಬಾರ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಂತ ಇದ್ರ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪಾಠ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ होम मिनिस्ट्री ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಾಳೆ ಬರಪ್ಪ, ಹೊಸ ಬಿಳಾಕು ಪೆಲೆ ಬಿಠಾಯಿ ಗಟ್ಟೆ, ಬಿಳಾಕು ಬಿಠಾಕಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು, ಏನೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು,
ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ಜಿದ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ? और डॉक्टर साहब बोले तब से जो ज़रूर में क्या भी मैं घर में जिम्मेदारी नहीं थी, उस वक्त से बावजूद जो हर किताब पढ़ते थे, आज तक भी बावजूद किताब पढ़ते हैं, मेडिसिन की किताब। 85 ईयर्स, आज भी 2 घंटे उन्होंने मेडिसिन किताब पढ़ते हैं। और अब जो 2 साल से नहीं जा रहे, स्टेट्स में उनके 2 बेटे हैं माशाल्लाह। एक बेटा बहुत कम उम्र में हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी है, वहाँ जाकर जो है ये गेस्ट लेक्चर इन US। अब 2 साल पहले अब जरा स्ट्रोक होने के बाद फिर भी जो है अब भी 2 घंटे किताब पढ़ते हैं। मेडिसिन की किताब, कोई किताब मेडिसिन की बगैर वजू के नहीं छुआ। कौन सिखाए सो? कौन? तो हमारे बच्चे सिखा देंगे हमें। कब सिखाते हैं? सो खाली जो है हमारे पास फूकने, क्या बोलो? फूकने। ओ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन से कलाकार ड्रामा करो, कैसा करेंगे नहीं हमें लोग, सब जो क्या बनी ड्रामेटिस्ट बन गए, निकल जाना इससे, ठीक है? अब देखो वो बच्चा बाद में क्या हुआ भाई, जो बच्चे का नाम क्या मालूम हो? नाम सुनेंगे? वो बच्चा माल पे रहा, उसी का नाम TMA पाएकर, फाउंडर ऑफ मणिपाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाउंडर ऑफ सिंडिकेट बैंक। उनके जो बच्चे से ज़्यादा जो है जो कंग्रेचुलेट करना किसे करना सो? माँ बाप को। ऐ कुत्कोड़ो होगा होगा ನಿಮಗೆ ಓದಿಸಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಹೋಗಲ್ ಹೋಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ जापान होते जापान। अरे वहाँ जाना अम्मा बोलती है मेरे को बहुत जॉब पहले क्यों, तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाता। पूरा हमारा जो है पूरी तरह हम वर्चुअल बन गए, पूरी तरह हमारे अंदर सुपर चिल्ला गए। कब देखो फूकने, कब देखो बात, कब देखो शो ऑफ। कौन की बोली करते हैं? खाली मेरे मर्द को जो है गाँव का दफेदार बोले तो बस मैं क्या दे तो बस परवाह नहीं करो। आज वी वांट शो ऑफ, हर चीज़ में हमारे अंदर शो ऑफ आ गए। तो हम लोगों को ये शो ऑफ से निकलना, शो ऑफ से निकल को हमें कुछ बनना बनेगा इंशाल्लाह। तीसरी स्टोरी जो है तुम्हें पढ़ लियो, जाकर नेट में रू अफ़ज़ा करो, डालो रू अफ़ज़ा कैसे बना, होमवर्क टू आवर टीचर्स। तीसरी स्टोरी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, तो इसी पर हम ख़त्म करेंगे, इसलिए कि हाँ डॉक्टर्स का प्रोग्राम है, तो भी याद रखेंगे हमें इंशाल्लाह दूसरों को देने वाले बनेंगे। और वो जो है वो बच्चे के अंदर, डॉक्टर के अंदर क्या बात है, जब तक मेरे अतराफ के बच्चे ऊपर नहीं आते, मैं ऊपर नहीं आता, उसकी नीयत जो है इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट मणिपाल इज़ द बिगेस्ट जो है क्लस्टर है, सबसे बड़ा जो है नेटवर्क है इंस्टीट्यूट्स का इंडिया में। उसका जो है फाउंडेशन जो है लिखने वाला डालने वाला कौन? TMFI। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसकी बोला आपको जो ख़त्म करता हूँ बात। 1958 में उन्होंने एप्लीकेशन लिखा मेडिकल कॉलेज बनाना करता, तो वो ज़माने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आ रहे थे, तो वो बाद में जो है प्राइवेट कॉलेज सैंक्शन हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन होना था, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं। इनको लेटर आया तो लेटर के साथ पूरा बना डाले। लेकिन जैसे ही जो है 58 के बाद थर्ड गवर्नमेंट है, कांग्रेस की चाहिए, लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी बदली, एक जो है औरत हेल्थ सेक्रेटरी बनी। तो उसके बाद FI लाई, देखी तो ये कैसा बना डाले, क्या भी इससे पहले क्या भी इसने है ना, प्रेसिडेंट्स ने है ना, हाउ कैन यू बी ए प्राइवेट कॉलेज। तो वो क्या करी भाई जो है नहीं कैंसिल कॉलेज से काम भी इससे पहले कौन दिया से और कुछ एक लेटर भेज डाली, सो वी आर कैंसिलिंग योर लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं भाई जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का नहीं है, गवर्नमेंट का चाहिए, गवर्नमेंट ने चलाना, सो ये लेटर वापस ले लें। तो उसके बाद क्या हुआ सुनो, ये लेटर आया किसे? TMFI को। जो बच्चा कौन सा बच्चा माल पे का याद रखेंगे, गाँव याद रखेंगे, सबको याद रहता है, ठीक है? कहानी याद रखना, आज ज़िंदगी बदलना है। आज भी तुम नफरानोजिस की बात नहीं कर, सब मुझसे सब कनेक्ट सुन लियो। आज नफरानोजिस को तो हाँसू चल जाता है, तो जानती वो सीरियल आएंगे में हमें, उसके बाद से मुफ्ती से माँ भी चाहे सीरियल नंबर उसमें, ठीक है? अब क्या हुआ, जब लेटर आया तो देखो परेशान तो हुआ ही नहीं, अब पूरा बनाना जाता, तो क्या करा भाई, ये बड़ा हॉल आज भी है मणिपाल हॉस्पिटल में, मणिपाल में, अब हमें भी देखे हॉल, वो हॉस्पिटल के दरमियान बहुत बड़ा हॉल है। तो पूरे को जोड़िया, पूरे इसके जितने साथियाँ थे जो काम कर रहे जोड़ को भाई जो है क्या करा, लेटर पड़ा, देखो इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर आपको है कि भाई ऐसा है। तो लेटर पढ़ो क्या वजह सुनो ना, मैं क्या बोला, टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड आई विल ट्राई टू ओपन ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इफ इन केस on the way in my journey, if I fail to open a private medical college, bury me in the center of this hall, and outside the hall you write in epitaph, here lies a man who tried to open a private medical college। समझ में आ रही बात? आखिरी फ़ोन के खतरे थे, मैं कोशिश करूँगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने की। अगर मैं जर्नी में मर गया तो मुझे ये छाल के दरमियान दफन कर डालो, बाहर एक कतवा लगा डालो, यहाँ क्या मेरा नाम लिखो ना को, क्या लिखो, यहाँ एक वो आदमी सो रहा है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन करने की कोशिश किया। तो आज उनके 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा इंडिया को अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इम्पोर्टेंस दिए, सबसे ज़्यादा जो है भाई इंडिया को जो है लेवल को ले लगा मेडिकल एजुकेशन में,
वी हैव टू सैल्यूट TMFI। आज हमें क्या भी मालूम नहीं, हमें क्या कहते हो मेंढक मेरी इतनी बड़ी कॉलेज में क्या होगी, पुड़गो सिखाए थे हमारी पुड़गो से इदारे क्या आके बड़े बड़े बात मतलब यार ये नथिंग खतरा नहीं। जो इंडिया में काम हो रहा मैं जिसकी बात कर रहा नहीं, दुनिया का हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, जो इंडिया में अब काम हो रहा उसमें जो है हम नॉट इवन ए ड्रॉप। और उड़ने से क्या करते हो पूरा समंदर ही पार कर डाले, हिमालय को चढ़ गए, अब क्या भी नहीं फ्लैग लाने का वक्त समझ लेते हैं। तो लेट अस कम आउट ऑफ दिस, लेट अस कम आउट ऑफ दिस हाइबरनेशन, लेट अस रियली जो है हमारी क्या औकात हमको मालूम है दे। आज तक जो हालात हमारे ऊपर हैं वो हमारी ही करनी है, हमारे हाथों से हमने अपनी खबर खो दी है। फिर जो है आगे चलकर जो है उम्मत को दफना रहे हैं, तौबा कर लेंगे इंशाल्लाह जो है विल गेट आउट ऑफ दिस। उसके लिए क्या याद रखेंगे, दो चीज़ें, एक तो जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे, दूसरा क्या है चार आने की भी वैल्यू है, कभी भी जो है चार आने को उचित कम नहीं समझेंगे। तो कम जो आखिर में जो है वालिद को याद करना नहीं करना। हमारे वालिद साहब जो है एक मरतबा हमारे भाई साहब गाँव में पढ़ते थे, मैं मैसूर में MBBS करता था, तो मैसूर से आया छुट्टी में, चल बा जो है अल्ताफ पूजा पैसे देकर भेजना देंगे बैंक को गए, वो बैंक एम्प्टी करते मनी ट्रांसफ़र। अब जो हमारा घर मावली में, मावली से बंदरवा सर्कल वहाँ बैंक थी, मैं वालिद साहब को वालिद साहब को साहब है ना बैंक, नहीं वहाँ जी चल सज्जनों से मिलेंगे, नहीं साहब है ना कहीं बहुत ही दूर चले गया है ना हो जाता, नहीं बा हमें तो 50 पैसे बचती ही, क्या बोले। तो तब मुझे समझ में 50 पैसे की क्या वैल्यू रखो जी, हम ना समझ में एक अंडे की क्या वैल्यू रखो, ये 10 पैसे की दूध की क्या वैल्यू रखो। आज जो है ये छोड़ो उड़ना, क्या भी जो है क्या भी नहीं तो फूकने मारना छोड़ा लो, शो ऑफ छोड़ा लो, ये शादियाँ में शो ऑफ छोड़ा लो, अपने लिबास में सीधे सादगी आ जाओ और हर चीज़ में सादगी लाकर कुछ करो, ये बच्चे परवान चढ़ेंगे। और जो है इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वेरी फ्यू, बहुत जल्दी उसमें हिस्सेदार बन जाओ, उसमें बढ़िया को जो है इंडिया का ये करें तो हमें भी इंडियन चेंजेस करते हो गुस्सा आता सोचे। अब कौन तो भी 10 सकरे पे मेम्बर ही कहाँ अली पब्लिक स्कूल में 8 मेम्बर काम करे, 2 मेम्बर आते ही नहीं। जब ओपनिंग जब आप स्टेज पर बैठ गए तो क्या करते हैं, मतलब ये करें बोलते नहीं बोलते हैं, जाओ जहाँ से करें ऐसा छोरा सो उन्होंने 90% उन्होंने काम कर रहे हैं। इसका क्या डिस्ट्री नहीं आ जाएगा इंडिया मेरा का तो क्या करते मंजे दे डालो का तो गुस्सा आता नहीं आता। लेट अस बी वेरी फ्रैंक, कहीं को जो है हमें ऐसा जो है लेट अस नो व्हाट हमारी खबर में खोद दी सो आज प्रूव कर नहीं रहा हमें सही बात हमारे बाबा अम्मा करे थे कौन करे नको भूल जाएंगे। अब हमें क्या भी नहीं कर पाएंगे, आज से हमें इस मुल्क को इंशाल्लाह थर्ड नहीं सेकेंड फर्स्ट क्लास इकोनॉमी बनाएंगे, इस मुल्क को 4 पर पहुंचाएंगे। ये मुल्क हमारा है खिदमत करने के लिए, राइट्स मांगने के लिए नहीं। ये मुल्क हमारा है उसके जो है आंखों से आंसू पोंछने के लिए। ये मुल्क हमारा है बीमारों के काम आने के लिए। मुल्क हमारा है हर एक के काम आकर हर एक के आंखों के तारे बनने के लिए करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। रूह अफ़ज़ा याद रखेंगे, जाको अब नेट में रूह अफ़ज़ा को जो है टाइप करो, तब रूह अफ़ज़ा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुन लोगे।